Hello students, welcome to the next lecture on the partial differential equation. Today I will explain you the important topic is named as auxiliary equation. Myself Dr. Hishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the partial differential equations. जैसा आप देख पा रहे हो last lecture was on the linear and the non-linear PD, homogeneous and non-homogeneous PD, CSR net PY question series, Charpit method, Lagrange methods, Cauchy problem and many more lecture are available in this playlist. You can follow it and learn the concept in a very simple manner. Now, if I give you a small motivations, all of you know that how you can solve the ordinary differential equation like y double prime plus 3y prime plus 2y is equal to 0. कैसे solve करते थे? Quickly let me know. Yes, you have to firstly find the characteristics equations. Fine. You can write as a m square plus 3m plus 2 is equal to 0 और इसके बाद आप इसकी m की वैल्यू निकालते थे that give you -1 and 2. Therefore y will be c1 e raised to power -1x c2 e raised to power -2x. ऐसे करते थे ना आप. तो सबसे पहले आपने ये इक्वेशन लिखी. This equation is known as characteristics equation. Yes, very good. Fine. That equation is known as the characteristics equation. Based on the roots of the characteristics equation, you can find the solution of the homogeneous ordinary differential equations. Fine. Now this is the case of the ordinary differential equation. Now in the similar way, इसी तरह we will solve the partial differential equations. Instead of using as a characteristics equation, we call as the auxiliary equations. Whatsoever the partial differential equation, either as a homogeneous or as a non-homogeneous, your first target is to find the auxiliary equations and its root. Then only you are able to solve or you can find the solution of the partial differential equation. So आज के lecture में what is the auxiliary equations, इसका purpose क्या है, find how we can write it, how we can find the solution, that we will discuss in this lecture. चलिए, first of all, what is the advantages of the auxiliary equations? The auxiliary equations convert the partial differential equations into the algebraic problem. Algebraic means you can write any of the polynomial form. Fine. अगर आपके पास polynomial आ जाए तो उसका आप roots निकाल सकते हो ना. Quadratic है, then again you can find it. If it is a cubic, again you can find the roots of the polynomial. Now, the purpose of this auxiliary equation is it helps us to determine the exponential solutions. Again, it helps us to find the complementary functions and the structure of the partial differential equations. That means we can find the solution in a very simple manner. Whenever we have any kind of the partial differential equation which is written as f of d into d prime, fine. तो ये सब हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं ना लास्ट लेक्चर्स में, होमोजीनियस एंड दी नॉन लीनियर केस में. फाइन. एक चीज आपको याद रखनी है, कैपिटल डी इज रिटन एज ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डी प्राइम इज द ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू वाई. एक्स एंड वाई आर माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कई बुक्स और कई ऑथर्स इंस्टेड ऑफ द यू की जगह पे जी लिखते हैं, तो आपका जी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा. लेकिन मैं इस पूरे लेक्चर सीरीज में आपको यू आपको डिपेंडेंट वेरिएबल के केस में लेकर चल रहा हूं. नाउ whenever we are trying to find the solution of the partial differential equations, fine, our first target is to write the auxiliary equations. How we can write the auxiliary equations, that is a major challenge. How we can systematically construct the solutions. Fine. तो जब भी हमें कोई solution construct करना है, the first challenge is we have to write the auxiliary equation. Fine. जैसे ही हम auxiliary equation निकालेंगे तो हमें एक solution मिल जाएगा उसका. The solution of any partial differential equation is written in the form of CF, that is called as the complementary functions, and the particular integral. And in order to find the complementary functions, we always need the auxiliary equations. As I can define, the complementary function is obtained by finding the solution of the homogeneous part, while the particular integral is obtained by using the formula number 1. Now, our first target is how we can find the solution. Solution means आपका टारगेट क्या है, CF को भी निकालना और PI को भी निकालना. फाइन. अगर आपका phi of xy अगर आपका 0 है, that implies
p of I is also 0. As you can see, अगर आपका phi x 0 है तो pi भी 0 हो जाएगा. उस केस में आपके पास सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ CF ही बचेगा. और CF को निकालना कैसे है? By using auxiliary equation. Fine. So to find the complementary function, we first need to write the auxiliary equations. आप किसी भी एग्जामिनेशन में हो, चाहे कंपटीशन में हो, चाहे सब्जेक्टिव है, चाहे बीटेक है, चाहे मास्टर है, एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आना ही आना है इस टॉपिक्स के ऊपर से. नाउ कंसिडर द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर n. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑर्डर n? दैट मीन जहां पे भी पार्शियल डेरिवेटिव लिखा हुआ है सबकी ऑर्डर कितना होना चाहिए? n. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए लाइक डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश प्लस डी प्लस 1 ऑफ u. सो क्लियरली से इज इक्वल टू 0. इन दो का तो ऑर्डर कितना है? ऑर्डर इज माई 2. फाइन. लेकिन इस दैट इज अ वन डेरिवेटिव 1 है ना, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1. क्लियर. लेकिन हम सिर्फ वो कंसिडर करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए. तो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन सिर्फ इतने पार्ट का लिख पाओगे आप. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर n and the coefficients are my constants. Clear. That means we are considered as linear partial differential equation with constant coefficients. So I can write the equations into f of d into d prime of phi of x, where phi is the right hand side. f क्या हो जाएगा इस केस में? कैसे लिख सकते हो आप? a naught d of n plus a1. x कितनी बार है आपका? n minus 1 टाइम्स. और dy कितना है? एक बार है. और ये मैंने आपको कहां सिखाया था लिखना? इस लीनियर और नॉन लीनियर के लेक्चर में आपको. क्लियर. चलिए, द इक्वेशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू सब्स्टिट्यूट f ऑफ d इंटू डी प्राइम इज 0 इज कॉल्ड एज द ऑक्सिलरी इक्वेशंस. और ये फाइंड कैसे करेंगे? आई कैन सब्स्टिट्यूट कैपिटल D इज माई m एंड d प्राइम इज माई 1. तो इस इक्वेशन में फिल करेंगे. आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? a नॉट m रेज़्ड टू पावर n प्लस a1 m रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन. तो लास्ट वाली इक्वेशन क्या बन गई? an 1 इज इक्वल टू, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द एनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं उसका. व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशंस? कंसीडर द होमोजेनियस मींस राइट हैंड साइड इज 0. कांस्टेंट कोएफिशिएंट मींस the coefficient a1 a2 up to an all are my constants. Clear. Now if I assume the trial solution of the form u is f is any arbitrary function. f is my arbitrary function. और arbitrary function का मतलब ये f आपका क्या हो सकता है? f may be exponential function. Fine. f may be sine function, may be cosine function, और इट मे बी कॉन्स्टेंट एज वेल. कोई भी फंक्शन हो सकता है. और वो आप कैसे निकाल सकते हो? अगर आपके पास कुछ इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी, उससे आप फाई निकाल लोगे. क्लियर. अब आइडिया ऑक्सिलरी इक्वेशन का क्या पर्पस क्या है? बिकॉज हमने ये क्यों लिया है? बिकॉज एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव अगर आप e की पावर x ले रहे हो, इसका जितने टाइम मर्जी डेरिवेटिव कर लो वो सेम रहेगा. क्लियर. एंड द गोल क्या हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन का? टू कन्वर्ट द डेरिवेटिव इनटू द पॉलिनोमियल फॉर्म. क्लियर. अब मैंने ये u लिया. सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं. पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. इसको x के साथ करेंगे. x मींस d ऑफ u. रिमेंबर ये आपका क्या है? ux. फाइन. यही है ना आपके पास u. तो इसको क्या लिख सकता हूं? d ऑफ u. तो इसका करो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो एक m बाहर हो जाएगा. f प्राइम y प्लस mx. इसको y इसको करते हैं y के साथ, दैट इज अ d प्राइम ऑफ u. सो दैट विल बी f प्राइम y प्लस mx. यही आएगा. सेकेंड टाइम कर देते हैं डेरिवेटिव, क्योंकि यहां पे सब्स्टिट्यूशन करना ना मैं. तो n टाइम सेकेंड टाइम करेंगे, दैट विल बी m स्क्वायर f डबल प्राइम y प्लस mx. थर्ड टाइम्स करेंगे, दैट विल बी m क्यूब f ट्रिपल प्राइम y plus mx and so on. Similarly, you can write for the nth derivative. Similarly, for the d prime square and then so on. Substitute all these values in the equation number 1. तो यहाँ पे क्या हो गया? इसमें से देखो मैं m की पावर n nth डेरिवेटिव
ऑफ वाई प्लस एम एक्स प्लस a1 n-1, तो n-1 कितना हो जाएगा, ए एम रेस्ट पावर और n-1 ऑफ y प्लस एम एक्स इंटू डी प्राइम। तो जैसे आप इसको प्राइम करोगे तो एक f प्राइम और n-1 ये सेम है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका ओनली फॉर दी n। फाइन, सिमिलरली सॉन। तो आप देखो इन सभी में से ये वाला जो डेरिवेटिव कंपोनेंट है वो कॉमन आ जाएगा। क्लियर, तो जैसे कॉमन निकालोगे बीच की इक्वेशन बन जाएगी दिस पॉइंट। क्लियर, बिकॉज u इज माई नॉन जीरो, फाइन, दैट मीन्स द फंक्शन मस्ट बी नॉन जीरो, so that implies this quantity will be my zero is called as the auxiliary equations। और आप देख भी सकते हो ये कैसे obtained हुई है। I can substitute capital D to be the M and D prime to be 1। Clear? So auxiliary equation is obtained by substituting D is equal to M, D is equal to in equation number 1 or in equation number this one। चलिए अब सबसे पहले इन सब की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले सभी को डी की फॉर्म में लिख दो। ये लिखा हुआ है डी की फॉर्म में, ये लास्ट वाला ये एक्सप्रेशन नहीं लिखा, इसको कैसे लिखा जा सकता है, दैट इज ए डी क्यूब माइनस एक्स आपका 2 बार है डी स्क्वायर इंटू डी प्राइम प्लस 2d इंटू डी प्राइम स्क्वायर ऑफ u इज इक्वल टू 0। सिमिलरली लास्ट वाली एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, u x 2 टाइम्स है डी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ ए स्क्वायर यू वाई वाई डी प्राइम स्क्वायर ऑफ u इज इक्वल टू 0। नाउ कैन यू राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशंस, हाउ यू कैन राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशंस, आई कैन सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू m and d prime to be 1। so the first one is m cube minus 6m square plus 11m minus 6 is equal to 0। second one is 25 into m square minus 40 into m plus 16 is equal to 0। Similarly, for the third one, m square 1, m plus 1 is equal to 0 and so। बाकी दो आप इसको सेल्फ लिख सकते हो। क्लियर, नाउ बेस्ड ऑन दिस ऑक्सिलरी इक्वेशंस, फाइन, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के बेस पे आप ये CF निकाल सकते हो, PI अभी नहीं निकाल सकते। फाइन, PI मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले CF का निकालना बड़ा जरूरी है। फाइन, बेस्ड ऑन दिस ऑक्सिलरी इक्वेशंस वी कैन राइट द कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस। तो वो कैसे निकालेंगे कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशंस, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन इज CF से लिखते हैं हम Fi y plus mi। what is the mi is, mi is the roots of the auxiliary equation। जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन में थे तो वहां पे m की वैल्यू निकालते थे ना, जैसे मैंने लिया था -1 -2, तो आप सोल्यूशन कैसे निकालते थे, C1 ऐसे लिखते थे ना आप। तो ये -1 -2 क्या थे, दैट्स द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, देन वी कैन फाइंड mi आर द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशंस एंड Fi इज द आर्बिट्रेरी फंक्शन। अच्छा एक और चीज, ये कितने बार लिखा जाएगा, F1 F2 F3 उतनी बार लिखा जाएगा जितना उसका ऑर्डर होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर इज माई 3, थर्ड डेरिवेटिव है ना। क्लियर, तो इसका मतलब जो भी इसका सोल्यूशन आएगा दैट विल बी F1 ऑफ समथिंग प्लस F2 ऑफ समथिंग प्लस F3। क्लियर, तो 3 बार आएगा। सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लो। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कैपिटल डी को m फिल करना है आपको, दैट विल बी m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका रूट्स निकालो। सो क्लियरली से 1 इसका रूट बन जाएगा ना एक, तो आप चाहे तो इस तरह से डिवाइड कर लो, लेकिन मैंने आपको पहले भी शॉर्टकट ट्रिक्स बताया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर सीरीज में। इसके कोएफिशिएंट लिख लो, m क्यूब m स्क्वायर m एंड कांस्टेंट, आपका रूट क्या आया 1, तो इसको पहली वाली लाइन को एज सच लिखो 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इज 1, इन दोनों को करो सॉल्व, इट्स अ -5, 1 इंटू -5 -5, 11 इंटू -5 इज +6, इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6, दैट विल बी 0। फाइन, अब आप यहां पे इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, दैट क्वांटिटी इज माई कांस्टेंट, फाइन, नेक्स्ट क्वांटिटी इज माई m और नेक्स्ट क्वांटिटी इज माई m स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो अब आप ये क्वाड्रेटिक है, अब आप इसके फैक्टर बना सकते हो, सॉरी -m -5 है ना ये,
fine, so that will be minus 5m. Now you can easily write as the factor 2 and 3. clear? So आपकी m की वैल्यू आ गई 1, 2 and 3. based on this m, so आपका फंक्शन क्या हो गया, m f1 y प्लस क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, y प्लस एम आई एक्स. तो पहला x m उठाओ 1x प्लस f2 y प्लस 2x, तीसरा उठाओ y प्लस 3x is the required complementary function of the partial differential equation. अब क्योंकि इसका राइट हैंड साइड जीरो है तो इसका पीआई भी जीरो होगा ना, इसका मतलब आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया, CF plus PI, because PI is my zero, so that is itself is the complete solution of the partial differential equation. एक और करवाता हूं आपको, कैन यू राइट दी ऑक्सिलरी इक्वेशंस, तो कितना हो गया, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 0. सो क्लियरली से m कॉमन आ गया, दैट विल बी m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. कैन यू फैक्टराइज देम, yes, m minus 2, m minus 1 is equal to 0. So the value of the m are 0, 1 and 2 are the roots of the equation. जैसे आपको m मिला, so that is a y plus 0x, y plus 1x, y plus 2x, where f1, f2, f3 are my arbitrary functions. And clearly say the order of the partial differential equation is 3. That's why there are the 3 arbitrary functions. Now, remember students, whenever we can find the roots of the auxiliary equations, we can write as a mi. Based on the value of the mi, we can write as a complementary functions. But it should be noted that, fine, mi की वैल्यू जैसे अभी इनमें एग्जांपल में क्या थी, these are my real and the distinct. फाइन, फर्स्ट एग्जांपल में भी रियल एंड डिस्टिंक्ट थी, बट हर बार तो जरूरी नहीं है ना, रूट्स में भी डिस्टिंक्ट, roots may be equal roots, like you can say roots are my 1, 1 and 2. roots may be complex number and so on. जब आपके पास डिफरेंट चॉइसेस होंगी तो आपके कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी डिफरेंट होंगे. हाउ वी कैन राइट द कंप्लीमेंट्री फंक्शंस बेस्ड ऑन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशंस, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. बिकॉज कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना आना चाहिए. Clear? So we will see the next lecture, complementary functions, with the help of the 15 plus numerical examples. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck students. Happy learning.